वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन के बारे में। इस सेशन में हम हर एक पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ लेट इट कंटिन्यू। रिकॉर्ड ईच की स्ट्रोक, यानी आप जो भी लिखते हो वो हर एक चीज़ ये एप्लीकेशंस अपने अंदर कंटेन करती है और अपने ओनर को, जो हैकर होगा, उस तक के पहुंचाती है। Capture screenshots at regular interval of time showing user activities such as when he or she type a character or click a mouse button. Now, track the activities of user by logging Windows title, name of launched application and other information. In this phase, the attacker execute the malicious application. This is called owning of the system. इसको समझते हैं कैसे होता है। आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन में कोई मान लो एप्लीकेशन जो कि एपीके है, या फिर एक रैट फाइल, एक रैट सिस्टम से बना हुआ कोई एक्सप्लॉइट डाउनलोड करते हो। ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन आपका सारा एक्सेस एक हैकर को देता है। एक्सप्लॉइटेशन और लूज ऑफ प्राइवेसी, गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड क्रैक द पासवर्ड, ये हर एक चीज़ में काम आता है ना। Hiding files. Keyloggers monitor each keystrokes and employ computers' activities. Gather confidential information such as email ID, banking details. Two methods to record typing. Method first, hardware keylogger device attached to keywords. Okay, ये एक तरीका है। दूसरा, software keylogger runs on a computer, Windows XP example. Now, spyware. Spyware is a malicious software that enters a user's computer, gather data from the device and users, and send it to third party without their consent. A commonly accepted spyware definition is a strand or malware designed to access the damage a device without the user consent. सब कुछ एक्सेस दे देगा ये आपका, ओके, किसी एक हैकर को ना। A rootkit is a software used by a cyber criminal to gain control over a target computer or network. Rootkits can sometimes appear as a single piece of software but are often made up of a collection of tools that allow hacker administrator level control over the target device. It's mean ये बहुत डेंजर होता है ना। हम आगे बढ़ते हैं। रूटकिट इजीली इंस्टॉल अनइंस्टॉलेबल भी नहीं होता है। Objectives of rootkits. The main purpose of the rootkit is to mask malware payloads effectively and preserve their privileges existence of the on the system. For that reason, a rootkit will conceal file malware process, injected modules, registry key, user account, or even system registries running on a system boot. Gain backdoor access, gather sensitive data, network traffic, other malicious program on the systems. Now, attacker plays a rootkit by vulnerable computers, warping through social engineering, zero day attack. इतने सारे अटैक्स को यूज़ कर सकते हो आप। सबसे ज़्यादा जो इजी है वो सोशल इंजीनियरिंग है, अगर से टारगेटेड पर्सन इजी हो तो। हाउ टू डिटेक्ट एंड रिमूव रूटकिट. वॉच फॉर एनी साइन ऑफ ए रूटकिट अटैक. Pin down the rootkit location, run rootkit removal softwares, run a boot time scan, wipe the data and reinstall the operating system. Keep rootkit out of your system. Types: hypervisor level, hardware firmware, kernel level, or bootloader level, application level, or libraries level. Hypervisor level modifies boot sequence to load host OS as virtual machine. Hide hardware firmware from code integrity inspections. Replace OS kernel with device drivers code. ओके ना। स्टेक्नोग्राफी, अब स्टेक्नोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। Steganography is the practice of concealing information within the another message or physical object to avoid detection. हम इमेज के अंदर में कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर, कोई ऑडियो के अंदर में मलेशियस सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर सकते हैं, कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो कंटेंट दैट हाइडिंग डेटा इज द एक्सट्रैक्टेड एट इट्स डेस्टिनेशन. ओके ना। Countermeasure: don't share your password with anyone. Do not use clear text protocols. Use always HTTPS like that.
system default passwords you need to ignore, and you need to forget, you need to use a best one of the best passwords, run services as unprivileged user, use encryptions techniques to protect sensitive data. Now, establishing VNC sessions. Attackers use client-side vulnerabilities to exploit unpatched softwares in a Kali Linux. root@Kali ये हमारा यूज़र का नेम होता है. अभी जो यूज़र है वो रूट है, ओके, और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काली है. MSF console, search MSF11, use exploit Windows browser and you can use this kind of attacks. अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ओके, जस्ट वेट. Escalating privileges by exploiting client side vulnerabilities. सो क्लाइंट में अगर से कोई वल्नरेबिलिटी हो तो हम इस तरह के अटैक से उसको हैक कर सकते हैं, ओके. इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है, सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल्स. नाउ अभी हमें अपना MSF कंसोल को चालू करना होगा. MSF एडमिन हम यहाँ पर टाइप करते हैं एंड अगेन MSF एडमिन. फाइन. इफ कॉन्फ़िग करके एक बार आईपी एड्रेस चेक करते हैं, ओके, बढ़िया. IPv4 हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, सो 1.10 इसका IP एड्रेस हमें मिल चुका है. सबसे पहली स्टेप हम परफॉर्म करने जा रहे हैं अभी हमारी. हम पिंग करेंगे, ओके. फर्स्ट हमारा जो चीज़ होता है वो पिंग ही होती है हमेशा. तो 192.168.0.1110, ओके. एंड ये प्रॉपरली पैकेट्स पिंग और रिसीव कर रहा है, तो बढ़िया है. अब हम nmap का यूज़ करते हैं हमारे, ताकि हम देख सकें इसमें कितने पोर्ट्स ओपन अवेलेबल है, एंड फिर हम इस सिस्टम को हैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे. स्मॉल कैपिटल P स्मॉल n, देन हम यहाँ पर वर्जन्स को सिलेक्ट करते हैं, स्मॉल s, कैपिटल V एंड हाइफन कैपिटल A भी यूज़ कर लेंगे. 192.168.0.110 ये हमारी IP एड्रेस अवेलेबल है. ओके, बहुत सारी डिटेल्स हमें मिल रही होगी यहाँ पर. जस्ट इसको एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं. सबसे पहले हमें FTP मिल रहा है, उसके बाद में हमें SSH मिल रहा है, SSH के बाद SMTP मिल रहा है, फिर HTTP मिल रहा है, RPC बाइंड मिल रहा है. RPC बाइंड के बाद ओके नेट बायस का SSN वर्जन मिल रहा है. बहुत बढ़िया. ओके, बहुत सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर विजिबल हो रही है. सो अब हम ऑन करने जा रहे हैं अपना MSF कंसोल. तो यहाँ पर हम न्यू टैब लेंगे, क्योंकि हमें फिर से nmap की नीड पड़ सकती है. sudo su कर लेते हैं हम डायरेक्टली, बाकी
हमें बार बार पासवर्ड देने की नीड नहीं पड़ेगी। MSF कंसोल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, हमारे पास में MSF कंसोल अवेलेबल हो चुका है। फर्स्ट कमांड हम टाइप करेंगे यूज़ ऑक्सिलरी। ओके, सो यूज़ ऑक्सिलरी स्कैनर FTP एंड वर्जन, ये हम सिलेक्ट करेंगे ऑक्सिलरी। ये ऑक्सिलरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम सेट आर होस्ट करते हैं। तो आर होस्ट होता है हमारा वो होस्ट जिसको हम रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं। तो 192.168.0.110 ये हमने सेट किया अपना आर होस्ट, एंड हम एंटर करके इसको सेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जस्ट रन कमांड को यूज़ करेंगे एंड देखते हैं क्या आउटपुट हमें विजिबल होता है। बहुत बढ़िया, ऑक्सिलरी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो पा रही है। एंड इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है, अगर से आप यही सेम चीज़ को अगर से छुपके से करना भी चाहो तो कर सकते हो। ओके, यूजिंग एनोनिमस। ओके, सो अब हम एक काम करते हैं, एक बैकडोर यूज़ करेंगे VSFTPD। ओके, एंड उसी की हेल्प से हम इसको हैक करते हैं। सबसे पहले हमें एग्ज़िट करना होगा। हम एग्ज़िट हो चुके हैं। हम कंट्रोल D भी कर सकते थे, बट ओके, या बैक भी आ सकते थे। MSF कंसोल यूज़ करेंगे। और वैसे भी हमारा जो FTP है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम यहाँ पर वैसे FTP इस तरह से टाइप करके 192.168.0.110 डिट एंटर। यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है MSF एडमिन, ये हमें टाइप करना होगा MSF एडमिन, ये हम टाइप करते हैं। सो अब हम अगर से देखेंगे डायरेक्टरीज, तो हमें वो डायरेक्टरीज दिख रही है जो हमारे Metasploitable 2 के अंदर अवेलेबल है। यानी अगर से हम इस पर हु एम आई ये कमांड टाइप करेंगे, हु एम आई, ये हु एम आई, अगर मैं शायद से कमांड प्रॉपरली नहीं टाइप कर पा रहा हूँ, हु एम आई। सो PWD हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम MSF एडमिन में। ओके, होम MSF एडमिन। अगर से नॉर्मल काली की बात करें ना, तो अगर से हम PWD टाइप करते तो यहाँ पर काली दिखता है, बट हम MSF एडमिन में है, यानी हम Metasploitable 2 मशीन के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पर हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दिस अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर फॉर हाइफन यू। ओके, एंटर। ये डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब इस डायरेक्टरी को ना हम एक्सेस करेंगे अपने Metasploitable 2 मशीन से। सो यहाँ पर ls करते, दिस इज़ फॉर यू अवेलेबल हो रहा है हमें। ये भी एक तरीका है, एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी अवेलेबल है इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगर से आप चाहो तो देख सकते हो, या मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर दूंगा। ओके ना, तो यही था हमारे MSF कंसोल में, एंड जो हमने आज सीखा मे भी आपको पसंद आया होगा। अब कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये सेशन यहीं पे फिनिश हो चुका है।